जय श्री कृष्ण बच्चों। अब हम लोगों का जो स्पोकन क्लास है वो इस लक्ष्य तक पहुंच चुका है कि हम लोग बैठ कर के किसी से बात कर सकें, क्योंकि अब तक मैं आपको जो बता रहा था वो सेंटेंस फॉर्मेशन बता रहा था कि कैसे हम सेंटेंस को बनाएं और किस भाव में हम क्या बोलें। अब आपको यहाँ से उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सीखना चाहिए। अब आपको कोई एक टॉपिक ले लेना है और उस टॉपिक पर बोलना है। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों, इसमें ग्रुप डिस्कशन की आवश्यकता होती है। मतलब अब एक लड़का दो लड़का ऐसे ऐसे कर करके मिल करके और आपस में टॉकिंग की क्रिया इसके बाद शुरू होती है, समझ गए। तो ये टॉकिंग तो चूंकि जिस माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक दो स्टूडेंट्स मिल जाए जो इसी तरह से पढ़े हों तो आप उनके साथ बैठ के बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो अपने आप में भी अकेले में भी विवेकानंद जी अकेले में 3 महीने तक प्रैक्टिस करते रहे और अंत में अमेरिका में गए और सारा संसार जानता है शिकागो में उन्होंने गर्दा उड़ा दिया जैसे कि। तो अगर अकेले में भी प्रैक्टिस करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ एक तो ये भी प्रैक्टिस है कि अपने सामने अगर कोई नहीं आपका प्रतिद्वंदी है तो मिरर के सामने खड़े हो जाइए और खड़े होकर के और आप उसको देख करके ऐसे प्रैक्टिस कीजिए जैसे लगे कि आप उसके साथ बात कर रहे हैं। ये भी एक उपाय है। लेकिन अगर आपको कोई मिल जाता है साथ में बात करने वाला तो जो इट विल बी फार बेटर फॉर यू। तो अब मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक, जैसे एक टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, अब उस पर हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करके देखेंगे। हेल्थ इज वेल्थ इज एन ओल्ड सेइंग, a healthy person is able to protect all things for himself and for another. Actually, good health depends upon good food, fresh air, and clean water. Therefore, we should walk in the morning, because in the morning you can get fresh air which comes from mountain of Malagiri, mountain of forest, and so you will get very fresh air in the morning. And we should drink clean water, because I think that nowadays in Ganga Valley there are so many toxic material came with our water and underground water too. Therefore, I think that we have to take we have to drink only, or we have to take only, we have to enjoy with only. We may say that such water which are contain, which can doesn't contain any contaminated materials, toxic materials, and which are safety for drinking. We have to take such types of water and fresh air, clean water. After that, good food. Good food means healthy food, food which contains appropriate amount of protein, adequate amount of carbohydrates and fats and vitamins and minerals too. Because you may say that we have to take balanced diet for being healthy. Even if you have take a balanced diet, then certainly you will be a very healthy person. And even if you are a student, then you must have to keep good health, because without having good health, you can't study regularly. Because so many students said me that yesterday, sir, I was not well, therefore I won't come here. Then it is a very great problem, I think, for him. You must have to be healthy, because a great person has said that sound mind lives in a sound body. Even if you have sound mind, then certainly your a sound body, then certainly you have sound mind also. Therefore, we have to keep sound body and to having sound mind, and it also helps in our military department or in other department where health is very important. We have to keep it, and I think that even if you are a player, then you must have to also have to keep a good health. And even if you are a athlete, then it is very essential for you to have a very good health. Therefore, I think that we must have to keep good health. And so I'm trying, and not only I, but everyone. I want to say to everyone that you should try to have a good health. ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल कम टू। ओके, तो इस तरह से आप लोग जो है आपस में छोटी छोटी बातें लेकर के, और ये मन में थोड़ा भी न रखें कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। बच्चों, आपके मन में जो भाव आ रहा है, which you want to say, you have to say. You mustn't have to think that I'm saying right or wrong.
बिल्कुल आपको मन में जो आ रहा है बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ। आप सही बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, ये आगे वाले को देखने का काम है। वो सामने वाला देखकर आपको बताएगा कि आपने कहाँ पर गलती करी है। क्योंकि बच्चों गलती होती है, सबसे गलती होती है, बड़े-बड़े नेताओं से गलती होती है, बड़े-बड़े विद्वानों से गलती होती है। किताब में भी मैंने कई बार गलतियाँ देखी है। तो इसका मतलब क्या वो लोग नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन गलती होती है। एक बूढ़ा आदमी को भी ठेस लगता है, वो भी गिर जाता है, तो क्या कहोगे बूढ़ा को चलने नहीं आता है? बूढ़ा को चलने आता है, ठेस लग गया, गिर गया, फिर उठ जाएगा, समझ जाएगा। तो आप इसी तरह से विदाउट हेजिटेशन यू हैव टू स्पीक। You mustn't have to think that I'm telling right or wrong, and the person who is hearing me, what will say about me? ये आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस बोलते चला जा रहा है, बोलते चला जा रहा है, बोलते चला जा रहा है। एक चीज और, आप ये भी मन में न रखिएगा सर अंग्रेजी का मैं अच्छा ज्ञान भी नहीं रखता हूँ। तो क्या आप हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं क्या? आप हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान नहीं रखते हैं, क्योंकि चूंकि ये है क्या, इट इज अ मीडिया बाय विच यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप जो अंदर में चाह रहे हो, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वांट टू गो टू प्ले, आई वांट टू हैव अ पेन, आई वांट टू परचेज अ बाइसिकल, आई वांट टू लाइट, आई वांट अ फैन, आई वांट टू कम, आई वांट टू राइट। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीजों को आपस में मित्रों के बीच बैठ करके और इन सेंटेंसेस को कनेक्ट करें, और कनेक्ट करें। ये आपका प्रोसेस चलेगा 5 डेज का। फिर उसके बाद 5 डेज अगर इस तरह से, फिर मैं कल आपके साथ बैठूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट शुड वी हैव टू डू नाउ। और ये सेंटेंसेस को आप कनेक्ट करने का प्रयास करें, हाउ टू कनेक्ट वन सेंटेंस टू अनदर सेंटेंस। फिर आपस में जो है मित्रों के साथ बैठ करके कुछ टॉपिक्स पर भी चर्चा करें। बच्चों हम लोग चलना नहीं जानते थे, किसी ने ऐसे करके उठाया, फिर खड़े हुए, खड़ा होने में भी थोड़ा समय लगा, फिर धीरे धीरे 1 कदम 2 कदम 3 कदम करके आगे चले। अब आज पीटी उषा बने हुए, आज धावक बने हुए, आज रनर बने हुए हैं। लेकिन एक समय तो चलना भी नहीं आता था। तो यही मान के चलिए सेम प्रोसेस यहाँ भी है। आपको शुरू में एकदम टूटे फूटे छोटे छोटे सेंटेंसेज ही बोलना है, इन्हीं सेंटेंसेज को जोड़ना है, और जोड़ते 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 आपका एक लंबा, एक बड़ा, विशाल इस तरह से आपका भी बन जाएगा। आफ्टर दैट यू विल बी अ गुड, वेरी गुड स्पीकर। बट फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर यू मस्ट हैव टू बी गुड लिसनर। आप एक अच्छे श्रोता बने, आप अगले वाले की आवाज को सुने, वो क्या कह रहे हैं, उनका कहने का आशय क्या है, फिर आप पकड़ें कि इसका कुछ ऐसा भी चाहिए जो हम समझते हैं या जानते हैं। फिर आप जो जानते हैं उसको एक्सप्रेस करें उस पर। तो बोलने के लिए सबसे पहले सुनना जरूरी है। पहले आप सुने, ऐसा नहीं है कुछ आता जाता नहीं है, बस अपना जो है बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। और बच्चों ये कोई हवाबाजी का विषय भी नहीं है। अंग्रेजी आपको बोलने आ गया मतलब आप बहुत बड़े काबिल हो गए, ऐसा कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल साधारण आदमी है, जैसे सब बोलता है तैसे आप भी बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आप ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल, हमारे एक टीचर थे वो सब जगह अंग्रेजी बोला करते थे, तो दुकानदार से ही बोल रहे थे, ये दो वो दो, अंग्रेजी में कर रहे थे। दुकानदार ने अंत में गुस्सा में कह दिया, टेक तो टेक ना तक हुआ। लो हो गया उनका। दुकानदार ने उनको कह दिया टेकवे तो टेक, अब ना तो गो अवे। तो उनको समझ में आ गया कि अरे तो अंग्रेजी दुकानदार भी जानता है। वो किसी से भी शुरू हो जाते थे। हालांकि अंग्रेजी के अच्छे टीचर थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको उसी के साथ बोलना है। आज मैं आपको हिदायत दे रहा हूं, ये धनंजय शर्मा का आपको हिदायत है कि कभी किसी को बेइज्जत करने के लिए, कभी किसी को अपमानित करने के लिए इसका प्रयोग न करिए। आपका गुरु का आदेश है। आप अंग्रेजी सीख रहे हैं इसलिए ताकि आप दूसरे के साथ अंग्रेजी में बात कर सकें। ऐसा नहीं कि आप किसी को ह्यूमिलिएट कर सकें, किसी को बेइज्जत कर सकें। ऐसा भूल के भी नहीं करना है बच्चों, भूल के भी नहीं करना है मित्रों। क्योंकि यह एक भाषा है, यह एक उद्गार का माध्यम है। यह आपका जो है गुरु की भावना के खिलाफ होगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसलिए ऐसा भूल के भी ना करेंगे, कभी किसी को अपमानित ना करेंगे इस भाषा के माध्यम से। अगर कोई अगला आदमी अंग्रेजी में बोल रहे हैं तो आप बोलिए, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए रिप्लाई आप दीजिए इंग्लिश में। इंटरव्यू वगैरह में आपको अंग्रेजी में ही बात करना होता है। लेकिन कभी किसी को अपमानित करने के लिए, ये शो करने के लिए कि मैं बहुत अंग्रेजी जानता हूँ, बहुत सारे मेरे गांव में ऐसे लोग हैं जो जानते कुछ नहीं है, फटर फटर खाली ऐसे बोलते रहते हैं, उनको कुछ नहीं आता जाता है। सचमुच में जब उनके साथ कोई बोलने वाला हो जाता है तो उनका समझ में आ जाता है वो कुछ जानते ही नहीं है, बस वो बस इतना ही जानते हैं, यस नो वेरी गुड।
कल मैं आपको इस पर भी कहानी एक सुनाऊंगा, अंग्रेजों वाली कहानी है, उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था। तो हमारे यहाँ बहुत सारे यही लोग हैं, यस नो और वेरी गुड, बस ये 3 वर्ड वो जानते हैं, इससे बेसी उनको आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं बनना है बच्चों, जानकार बनना है, उस टॉपिक के बारे में जानना है, समझना है, तब उसको बोलना है। पहले जानिए, सुनिए, जानिए, समझिए, तब अगर आप जानते हैं तो उस पर रिप्लाई दीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो सिंपली आप बोल दीजिए सर आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीजें जो आप नहीं जानते, सर्वज्ञ तो कोई हो ही नहीं सकता है। वासुदेव कृष्ण के अलावा संसार में सर्वज्ञ कोई हुआ ही नहीं। इसलिए बच्चों ये नहीं सोचे कि ये सवाल को मैंने ऐसा बोल दिया सर आई डोंट नो, तो आगे आगे वाले सोचे ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मुझे भी नहीं आती है, बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो आपको भी नहीं आते होंगे, हमसे भी जो बड़े विद्वान है उनको भी बहुत सारे सवाल नहीं आते होंगे। इसलिए ये मन की भावना ही निकाल दीजिए और नमन की भावना रखिए, बड़ों के प्रति आदर की भावना रखिए, झुकने की भावना रखिए, छोटों के प्रति स्नेह की भावना रखिए। और यही हमारी भाषा का मूल उद्देश्य भी है, बड़ों का सम्मान हो और छोटों का भी सम्मान हो। जय श्री कृष्ण।